Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your social studies class for grade 7. Today we are going to read chapter number 11, The Road to Independence, page number 75 to 78. This is the part A of the video reading. Now open your Scandi Social Studies for Pakistan, page number 75, chapter 16, The Road to Independence. आज़ादी की तरफ सफ़र. The First World War took place from 1914 to 18. Indian troops played a large part in the fighting, especially in Mesopotamia, present-day Iraq, where the Muslim soldier was fighting against the fellow Muslim Turks. Indian soldiers, including Muslims, suffered terrible casualties and every brutal treatment at the hands of the Turkish army. To reward them, the British Prime Minister Lloyd George promised India full self-government after the war, but he did not say when. Mr. Jinnah, now the leading Muslim figure and already a member of the Indian Legislative Council, joined Muslim League in 1930. He became its president. And 3 years later, he was a strong supporter of a united subcontinent and tried to get the Indian National Congress and Muslim League to work together towards his end. The Lucknow in 1916, he reached an agreement with the Congress to cooperate with separate electorates for Muslims and Hindus in all future governments of a united India. At this time, Mr. Mohandas Karamchand Gandhi, who was dominate Indian politics until partition came to lead the Hindus. पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 में हुई, जहाँ हिंदुस्तान के दस्ते मेसोपोटामिया में बहुत बड़े हिस्से पर लड़ाई कर रहे थे, जिनमें मुसलमान सिपाही भी थे जो अपने भाई मुसलमान तुर्कों से लड़ रहे थे. इन सोल्जर्स में मुसलमान भी थे जो बहुत बुरी तरह जो है उनकी बहुत ज़्यादा हरकतें हुई थी और तुर्किश आर्मी की तरफ से उनके साथ बहुत जालमाना सलूक किया जाता था. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर वो अच्छा यहाँ पर जीत जाएंगे तो उनको पूरे इंडिया पर हुकूमत, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने दी जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ. मोहम्मद अली जिन्ना जो मुसलमानों के कायद थे, वो जो मुस्लिम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को 1913 में उसको ज्वाइन किया और उसके प्रेसिडेंट 3 साल बाद उसके प्रेसिडेंट बन गए. वो मुत्तहिद हिंदुस्तान के बहुत बड़े हामी थे और वो चाहते थे कि नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों मिलकर काम करें. लेकिन 1916 में लखनऊ जो है उसने कांग्रेस के साथ एक माहिदा किया कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के अलग अलग इलेक्शन करवाएगा और ये दोनों फ्यूचर में जो है ये दोनों इकट्ठे मिलकर हिंदुस्तान चलाएगी. लेकिन इस टाइम मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो जो है इस वक्त हिंदुओं को वो लीड कर रहे थे, उनकी क़यादत कर रहे थे. द मॉन्टेज क्लिम्स फॉर रिफॉर्म्स. The reforms in 1921, as they were known, were the third major step toward the independence. They proposed the following measures. A central assembly was set up for India with 144 members, all of whom were to elected by the people. The assembly could make laws, but the viceroy could, under certain circumstances, veto them. All provinces would have mainly elected assemblies to run as local government, agriculture, education and transport, defense, foreign affairs, police and the budget were still to be the responsibility of the viceroy and his council. There were to be 2 or 3 Indian members in the viceroy's close inner cabinet. The Congress rejected this proposal and the future battle lines seemed to be drawn up. The moderate Hindu leader Gokhale, who wanted to work with the Muslim, he died earlier. The extremist Tilak, who demanded total Hindu supremacy, was next later. On the Congress side were Gandhi, Nehru and Tilak, and on the Muslim side Muhammad Ali Jinnah and Sir Muhammad Iqbal. Mr. Jinnah still hoped for the two sides to work together and pleaded at the conference in 1929 for them to unite, but the Congress judged this wanting complete power for the Hindus. मॉन्टेन क्लिम्स फॉर्म की इस्लाहात. ये इस्लाहात 1921 में
दी गई थी और ये तीसरा बड़ा कदम थी आज़ादी की तरफ। इसमें मतलब झेल वो थे पॉइंट्स थे कि सेंट्रल असेंबली जो है वो इंडिया में जो सेट होगी तो उसमें 114 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 144 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 103 जो है वो लोग उनको इलेक्ट करेंगे। असम्बली जो है वो लॉस बनाएगी, लेकिन वायसराय जो है वो मुख्तलिफ हालात में इसको चेंज कर सकता है। तमाम जो प्रोवेंसेस हैं वो अपनी असम्बलीज जो हैं वो खुद इलेक्ट करेंगी और हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, तालीम और ट्रांसपोर्ट से लाने वाले जो इदारे हैं वो खुद चलाएगी। डिफेंस जो है, फॉरेन अफेयर्स और पुलिस और बजट जो है वो अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वायसराय जो नवाब है और उसका जो कौंसल होती है उसी के जिम्मेदारी उसी पर होगी उसकी ज़िम्मेदारी। और जो है वायसराय के इनर कैबिनेट में जो है वो इंडिया के 2 या 3 जो है वो मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, उसे मानने से इनकार कर दिया और आगे की तरफ लाइन अगले की जो हिकमत अमली है वो बनाने लगे। हिंदू के जो लीडर थे गोखले, वो मुसलमान और हिंदू के इकट्ठे काम करने के हक में थे, लेकिन वो बहुत ही जल्दी मर गए। तो उनकी जगह जो तिलक आए थे वो सिर्फ हिंदुओं की ही हुकूमत चाहते थे। कांग्रेस की तरफ से गांधी और नेहरू और तिलक, और मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद जैन और इलामा इकबाल, ये दोनों चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे मिलकर काम करें, लेकिन जो है कांग्रेस ने ये उनका बात मानने से इनकार कर दी और वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान पे सिर्फ उनका कब्जा हो। द 14 points चौथा निकात एट द मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1929 एम ए जिन्ना सैड देवर 14 points which were essential for Muslim in any future government of India. Among these points were the following. 1929 में जो मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई थी उसमें इलामा इकबाल ने अपने 14 निकात दिए थे जो मुसलमानों जो आगे फ्यूचर में जो है हुकूमत होगी इंडिया में उसमें मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरत है। और पॉइंट्स क्या थे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अ फेडरल वन। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल असेंबली फॉर इश्यूज विच अफेक्टेड द होल सबकॉन्टिनेंट, द प्रोफेशनल असेंबली फॉर द रीजनल। ये सेंट्रल असेंबली के जो इश्यूज़ हैं वो पूरे के पूरे बरसगीर पर असरअंदाज होंगे, लेकिन प्रोफेशनल असेंबली जो है वो रीजनल यानी कि इलाकाई उसको देखने के लिए होंगी, हालात को देखने के लिए होंगी। माइनॉरिटीज़ यानी कि जिनकी तादाद कम है हिंदुस्तान के, उनके लिए अलग से इलेक्शन करवाए जाएंगे और मुसलमानों को 1/3 जो सीटें हैं वो सेंट्रल असेंबली में, मरकज़ी असेंबली में दी जाएंगी। हर किसी के लिए मजहबी, तालीमी और ज़ुबान और रवाज की आज़ादी होनी चाहिए। मरकज़ी और सूबाई दोनों हुकूमतों में मुस्लिम और दूसरी जोहन सी मुसलमान और दूसरी जोहन सी माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी उनको जो है वो एक अच्छा और ख़ास जो है वो शेयर हिस्सा मिलना चाहिए। मिस्टर जिन्ना के जो ये सजेशंस हैं, जो उन्होंने ये मशवरे दिए थे नई बाउंड्रीज बनाने के लिए सूबों के लिए, वो बहुत ही अच्छे थे। इस तरह दूसरे हाथ पर 1930 में मोहम्मद इकबाल ने जो है मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस की इलाहाबाद में, और वहाँ पे मुसलमानों के लिए वतन हासिल करने की एक ख्वाहिश जाहिर की, पॉसिबिलिटी जाहिर की कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये हर किसी के लिए बेहतर है कि शुमाल मशरिक में जो है, शुमाल मगरिब में जो है बरसगीर के वहाँ पर एक खुद मुख्तार रियासत कायम की जाए। और उन्होंने इसके इस्लामी रियासत के जो हैं वो गैर वाज़ेह जो हैं वो हिस्से भी बता दिए कि यहाँ पे इस्लामी रियासत, इन इलाकों को मिला के इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए जो आजकल का पाकिस्तान है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश हुकूमत ने ऑर्गेनाइज़ करवाई थी 1930 से 1932 तक, ताकि जो भी मामला हैं उसको हल कर दिया जाए। पहले जो है वो मिस्टर गांधी ने अटेंड ही नहीं की थी, वो गए ही नहीं थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर गए थे मुसलमानों का केस लड़ने के लिए। सेकंड में मिस्टर गांधी आए थे, लेकिन वो फिर अपनी वही बात रिपीट कर रहे थे कि बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जिस मज़हब की मेजोरिटी है, जो मज़हब ज़्यादा है वही हुकूमत करेगा। थर्ड जो है वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थर्ड कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि उसमें कोई भी लीडर आया नहीं था। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड जो है वो इशू किया 1932 में कि मुसलमान को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो 1/3 हिस्सा मिलेगा।
और सूबाई हुकूमतों के मुसलमानों की पॉपुलेशन, मुसलमानों की आबादी के लिहाज से उनको हिस्सा मिलेगा। हिंदू जो है वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तहम्मुल दिखाया, लेकिन बाद में उन्होंने इस जो प्रपोज़ल था उसको रिजेक्ट कर दिया, उससे भी मानने से इनकार कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में बगावत और जो है वो तशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए। गांधी ने फाका कर लिया उसने, गांधी जी ने, और यहाँ तक कि वो मरने को पहुँच गए थे, लेकिन बाद जब ये वो जो अवार्ड जो है उन्होंने चेंज कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का इंडिया का गवर्नमेंट एक्ट जो था, उसमें क्या था कि तमाम पार्टी जो है वो अभी तक लड़ रही थी, कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, डिसाइड किया, एक सोल्यूशन निकाला कि वो इंडिया को आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने इंडियन एक्ट जो है वो 1935 जो है वो पास कर दिया। उसके पॉइंट्स ये थे कि इंडिया जो है वो अब ख़ुद मुख्तार गवर्नमेंट बन जाएगी, और उसमें फेडरल सिस्टम होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पूरे बरसगी को चलाएगी, और मुख्तलिफ खितों को जो है वो प्रोवेंशल सूबाई असम्बलियाँ चलाएंगी। इस तरह 11 प्रोवेंसेस बने, जिसमें से सिंध, बॉम्बे और सिया जो है वो अलग जो है वो सूबे बने हैं। मिनिस्टर या जो है उनको पावर हाउस दिया गया, वही रिस्पॉन्सिबल थे कि लेजिस्लेटिव असम्बली में कौन इलेक्ट होता है, डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, गैर मुल्की मामला जो हैं वो सब कुछ जो है वो प्रोविंशियल असम्बली के, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सूबाई असम्बलियों के हाथ में होगा। तमाम के तमाम जो है पावर जो है वो बरसगी के जो लोग हैं वो उनके हाथ में होंगी। इस हाल पर कोई भी खुश नहीं था। मुसलमान जो थे वो इस बात पर यकीन करते थे कि वो हमेशा ही माइनॉरिटी ही रहेंगे, और जो 290 शहजादे हैं वो उन्होंने भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो थी उनको, जमहूरी रिफॉर्म जो थी, इस्लाहात जो थी उनको कबूल नहीं किया। हिंदुओं ने भी इसको कबूल नहीं किया, और पूरे बरसगी में हुकूमत के ख़िलाफ़ फसादात और तहरीकें शुरू हो गई।